फ्रेंड्स, हमारे पास प्रोविडेंट फंड रिलेटेड काफ़ी सारी क्वेरीज आती हैं फ्रॉम आवर इन्वेस्टर्स एंड आवर क्लाइंट्स, एंड दिस वीडियो एक्चुअली combines top 5 issues which we face related to provident funds and how you could maximize your benefits out of provident fund. So a brief introduction about provident fund, many of you would be aware of it. 12% आपके बेसिक का कटता है आपकी सैलरी से, 12% आपका एम्प्लॉयर डालता है बेसिक का, 24% of your income, actually basic income, goes into a long term investment vehicle where it continues to attract a good 8+% tax free interest. Massive amount हो जाता है over a period of time पे, but अगर जो मैं 5 चीजें बताना चाह रहा हूँ वो अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो उसमें आपके पेन पॉइंट्स भी बढ़ जाते हैं. सो वी विल टॉक अबाउट कंसोलिडेशन, हाउ टू मॉनिटर योर पीएफ, नॉमिनेशन, taxation and inoperative rules associated with provident fund in this video. Before we move ahead, a quick introduction about myself. I am CA Puneet Agarwal. I am the founder of Banyan FA, where we are one-stop shop for all personal finance matters impacting individuals. Please do follow us on Instagram and YouTube, where we release weekly videos associated with personal finance. Let's get going on provident fund. So पहला most odd चीज जो मैं देखता हूँ provident fund की तरह, वो literally scattered रहता है. क्या होता है? Employees keep on hopping from one job to another after every couple of years. हर एम्प्लॉयर एक प्रोविडेंट फंड उनका अपना अकाउंट में पैसा डाल देता है. नाउ बहुत बढ़िया चीज हुई थी आज से कई सालों पहले, एक UAN यूनिफाइड अकाउंट नंबर ऑफ प्रोविडेंट फंड वाज एस्टैब्लिश्ड, वेयर बाय एटलीस्ट अब हर इंसान का एक UAN है. बट क्या होता है, उस UAN के अंदर भी हर एक एम्प्लॉयर का, अगर आप कंसोलिडेट नहीं करते तो आप जिस भी एम्प्लॉयर को ज्वाइन कर रहे हो वो अपने नाम का एक अकाउंट खोल देता है ऑफ वेयर योर प्रोविडेंट फंड मनी इज देयर. नाउ what you need to do whenever you leave an employer and join another employer, see the list of forms which your new employer gives you. उसमें एक और फॉर्म होता है to transfer your existing जितने भी provident fund accounts हैं into this one. नहीं करेंगे वो हर जगह बिखरे रहेंगे. Remember, out of sight is out of mind, and over a period of time this ends up being a significant compounder. So you need to ensure कि सारे के सारे एक जगह आते रहें so that वो balance एक जगह बढ़ता रहे rather than हर जगह scatter हो जाए. ठीक है. The worst part is private trusts. In many companies, they do not put their money with the provident fund authorities, but वो उन्होंने एक private trust बना लेते हैं. वो amount आपको आपके UAN के अगेंस्ट दिखता भी नहीं है. So अगर unless you bring it and transfer it here, that you might forget after a couple of years. And I've seen cases where multiples of tens of lakhs of money is lying in private trusts which people have forgotten about. ठीक है. So please do point number 1. Consolidate all your PF accounts into one account. Second, activate your online access to your UAN एंड उसको चेक करा करिए. एटलीस्ट 6 महीने में एक बार चेक किया करिए, इफ नॉट वंस अ ईयर. इंश्योर कीजिए कि आपका UAN एक्टिव है ऑनलाइन. वाई? कल को अगर आपको कुछ भी PF रिलेटेड मेंबर सर्विसेज करनी है, बी इट नॉमिनेशन, बी इट विड्रॉल, वॉट एवर इट इज, ऑनलाइन आजकल सब डिजिटल हो गया है, फिर आप उस समय परेशान होंगे. तो अपने ऑफिस के HR का सपोर्ट लेकर activate your online access and keep a track of your contributions. Yes दोस्तों, जैसे आप अपने बैंक अकाउंट को ट्रैक करते हैं ना, PF is nothing else but your bank account or your investment. And there are many known cases where employers default. In other words, आपकी सैलरी से तो निकल गया, आपको बोला कि डालेंगे लेकिन गया नहीं हो. तो वो जो SMS भी आते हैं ना PF से कि इतना पैसा क्रेडिट हो गया, कीप अ ट्रैक ऑफ दैट कि हाँ भाई क्रेडिट हुआ नहीं हुआ. 6 महीने में एक बार जाके बस देख लीजिए वो लाइन आइटम्स की आए नहीं आए, सारे के सारे 6 नहीं है आए. अपने एम्प्लॉयर के पास जाके बोलिए कि सर जी कहाँ गया वो PF का डिपॉजिट. एम्प्लॉयर्स कैन बी हेविली पेनलाइज्ड इफ दे डू नॉट डिपॉजिट PF ऑन टाइम. सो कीप योर ट्रैक ऑफ योर PF. थर्ड, नॉमिनेशन. कितना भी बोल लूं कम है इसकी क्रिटिकलिटी. आपके पास करोड़ों रुपए का PF का बैलेंस हो जाए, लेकिन अगर नॉमिनेशन अगर आपने नहीं किया है तो यू आर डूइंग अ वेरी वेरी डिसफेवर फॉर ऑल ऑफ योर बेनिफिशियरी एंड योर डिपेंडेंट्स. अगर नॉमिनी नहीं होगा उनको लिटरली हर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी टू गेट एक्सेस टू दैट PF अकाउंट. बट इफ nominations are updated, the money will reach the rightful owners of your PF without creating hassles. So please ensure that your nomination is updated in your PF account. Can be done very easily online as well as you can ask your HR counterparts. Third, taxation. लोगों को थोड़ा कम पता है इसके बारे में, काफी क्वेरीज आती हैं. So let me just elaborate a bit more upon this. Primarily on withdrawals and your contribution. जब contribute करें तो tax free है for most of the people. Let's talk about withdrawal. Once you complete 5 consecutive years of service, टोटल मिला के सारी, जैसे किसी कंपनी में 2 साल, फिर 2 साल, फिर 1 साल, तीनों मिलाकर 5 साल. तभी मैं कंसोलिडेशन की भी बात भी कर रहा था. जब आप कंसोलिडेट करके एक जगह ले आते हो तो पिछले वाले PF अकाउंट्स भी कंसिडर कर दिए जाते हैं फॉर consecutive years of service. So if you have completed 5 consecutive years of service in PF, then when you withdraw, the entire amount is
टैक्स फ्री। जी दोस्तों, बहुत ही सुपरबली टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट हो सकता है, बट प्लीज डू नॉट विड्रॉ इट जस्ट फॉर कि 5 साल बाद टैक्स फ्री हो गया, बिकॉज यू विल ब्रेक द कंपाउंडिंग इंजन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स। बट इफ यू विड्रॉ बिफोर 5 years, पीनल। क्या पीनल? एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन जो हुआ था पूरा का पूरा स्लैब रेट पे टैक्स हो जाएगा। एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट मिला था वो टैक्सेबल हो जाएगा स्लैब रेट पे। आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन आपने किया था, अगर उस पे आपने 80C जो 1.5 लाख की रिबेट होती थी, है ना दोस्तों, वो पूरा का पूरा जितना आपने टैक्स रिबेट ली थी वो टैक्सेबल फिर से हो जाएगी। एंड लास्टली इंटरेस्ट पार्ट भी आपके पैसे पे जो आपका कंट्रीब्यूशन था वो टैक्सेबल हो जाएगा। सो मेक श्योर यू डू नॉट टच योर PF मनी बिफोर 5 years। मैं तो कहूँ कभी टच मत कीजिए, सीधे रिटायरमेंट पे यूज कीजिए उसको, ठीक है। नाउ कम्स इन अ लिटिल बिट सैड स्टेट बट गवर्नमेंट के लिए हैप्पी स्टेट। फॉर वेरी स्मॉल सबसेट ऑफ आवर इंडियन पॉपुलेशन विच आर हाई अर्नर्स, उनके लिए थोड़े प्यूनिटिव टैक्स statuses आ गए हैं। I'll just talk upon this now. If your employer contribution, if you're lucky enough that you have such a good salary, and if your employer contribution is over 7.5 lakh per year, then any employer contribution above 7.5 lakhs will be considered as your income. और उस पे आपका टैक्स आपका एम्प्लॉयर काट के फॉर्म 16 में दिखा देगा। So that's sad. Second, इंटरेस्ट आपका एम्प्लॉय वाले पार्ट पे, इफ यू आर गेटिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस ओवर 2.5 lakhs इनटू द PF, योर मनी, आपने लेट्स से 2.5 लाख से ऊपर कंट्रीब्यूट किया, तो जितना अमाउंट 2.5 लाख से ऊपर है उस पे जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। थर्ड, एम्प्लॉयर का जो 7.5 lakhs से ऊपर का कंट्रीब्यूशन है उस पे जो इंटरेस्ट आएगी वो भी टैक्सेबल हो जाएगी। एंड आप बहुत लकी होंगे अगर आपके फॉर्म 16 में वो फिगर आ जाए, अदरवाइज यू हैव टू टोटल दैट अप एंड डिस्क्लोज इट इन योर टैक्स रिटर्न्स, राइट। अब बात आती है इनऑपरेटिव वाली पार्ट की। बहुत कंफ्यूजन है इस एरिया में, बिकॉज गवर्नमेंट ने मल्टीपल सर्कुलर्स रिलीज किए थे एंड कोई ढंग की जगह पे मिलते नहीं है वो सर्कुलर्स कि आप उसको एक जगह पढ़ के समझ सकें। सो मेनी पीपल थिंक दैट इफ योर PF अकाउंट बिकम्स इनऑपरेटिव, विच मीन्स जब आपने 3 साल तक उसके अंदर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो उस पे इंटरेस्ट आना बंद हो जाएगी। किन लोगों को चुभता है? जब जैसे आपने जॉब चेंज कर दी, जॉब चेंज नहीं की, जॉब छोड़ दी, या आप इंडिया के बाहर चले गए, तो अब आपका कंट्रीब्यूशन रुक जाएगा, 3 साल के बाद वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। तो द अर्ली सर्कुलर रिलीज सेड कि अगर एक बार इनऑपरेटिव हो गया तो इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाएगी। बट नाउ दोस्तों रिवाइज सर्कुलर काफी टाइम पहले आ चुका है। व्हाट इट सेज कि अब ऐसा कोई इनऑपरेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपके PF अकाउंट इनऑपरेटिव भी है टिल द एज ऑफ 58, यू विल स्टिल कंटिन्यू टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन इट। तो इस चक्कर में हड़बड़ी में जाके विड्रॉ मत कर लीजिएगा PF में। आप देखिएगा अगर आपका इनऑपरेटिव है तब भी इंटरेस्ट आ रही है आपके PF अकाउंट्स में, ठीक है। एंड द ओनली थिंग इज इनऑपरेटिव होने के टाइम पे इंटरेस्ट तो आ रही है बट वो टैक्सेबल हो जाती है। सो इन दैट सिचुएशन जितना भी इंटरेस्ट आ रहा है वो आपको इनकम में डिस्क्लोज करके उस पर टैक्स पे करना है। दैट्स द ओनली थिंग। सो इन समरी, PF tends to be a very, very strong compounding instrument for retirement. Do not break the compounding, but be aware about these 5 things which I told you and get it resolved for you. If you like this video, please give us a thumbs up and also subscribe to our channel. Thank you.